तो महामहिम राज्यपाल जी का हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं फिल्ड के प्रांगण में, और उनके परिवार के साथ जो अनार बहन आई हुई हैं, संस्कृति हैं, अंकित हैं, आप लोगों का सबका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का उद्देश्य है कि एक छोटी सी फिल्म जो महिला सशक्तिकरण पे हमने बनाई है, उसका आज अनवीलिंग मैडम के शुभ कमलों के द्वारा हम करने के लिए उनको रिक्वेस्ट किए और उन्होंने तुरंत हामी भर दी। तो इसके लिए जो है थैंक यू मैडम फॉर कमिंग ऑल द वे एंड एक्सेप्टिंग। इस फिल्म को हम दिखाने से पहले थोड़ा सा एक बताना चाहेंगे, हालांकि फिल्म में तो सब कुछ है। 2016 में जब मैडम वहाँ पर मुख्यमंत्री थी तो वहाँ पर महुआ में वो खुद आई थी, और जो हमने पहली हमारा जो फर्स्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप था, आज के समय में लगभग 7000 महिलाओं के साथ काम करते हैं, तो पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप था वो सैनिटरी नैपकिन पैड का हमने वहाँ पर उनका यूनिट बनाया था और महिलाओं को ट्रेन किया था। और उसके साथ ही कुशल ग्राम कलसार जो था एक पहला गांव था गुजरात में, जिसके हर व्यक्ति के पास आज भी कम से कम 2 और 3 स्किल, उसके लिए हमने काफ़ी मेहनत की थी 3-4 साल की, वो था। तो दोनों का इनॉग्रेशन था। तो उस समय 2016 मई से लेकर के आज लगभग 7 साल की जो घटना है, तो 3000 दिन का एक प्रण, एक संकल्प और एक कठिन गाथा 9 मिनट में हम आपको बताने जा रहे हैं मैडम। थैंक यू। सो we'll start now. We'll have a formal welcome afterwards because film जल्दी देख लेते हैं, मेन आयोजन वही है। हाँ, वो रिमोट दीजिए आप। Women in Mahua until few years ago. They spent most of their time doing household and were often employed as field workers. A change of image was inevitable. In 2016, Pidilite Industries, with the support of the Gujarat government and other state agencies, set up self-help groups consisting of 10 to 20 women. The aim was to reduce their vulnerability and develop their entrepreneurial skills. Today, there are around 1000 SSGs.
several micro enterprises providing financial independence to more than 7,000 women every day. અમે લોકોએ શરૂ કર્યું ત્યારે એટલું બધું આસાન ન હતું કે બહેનો સાથે કામ કરું. ધીમે ધીમે મેં એક શરૂઆત કરી. મેં મારા ઘરના પરિવારના બહેનોને અમારી સાથે જોડ્યા. અમે શરૂઆત 10 બહેનોથી કરી હતી. અમે લોકો આજે 7,000 બહેનો સુધી પહોંચ્યા છીએ. Pidilite Industries has played a crucial role in promoting the growth of women. Several industries were established in different parts of the village. Women received professional training in manufacturing, banking, sales, and day-to-day business. These women are passionate about changing their future. They work with precision and accept every challenge at work. 2019માં મેં બેકરી યુનિટની તાલીમ લીધી છે. મને પહેલા વાંચતા લખતા પણ ન આવડતું. ગામની મારા સન્માન અને પીડીલાઇટમાં જોડાણી પછી મને સ્માર્ટફોન વાપરતા પણ આવડી ગયું છે અને મને વાંચતા લખતા પણ આવડી ગયું છે. થોડું થોડું ઇંગ્લિશ પણ આવડી ગયું છે. શરૂઆતમાં બહેનો વજન કાંટા પર કામ કરતા ડરતા હતા કારણ કે તેમાં નંબર છે અંગ્રેજીમાં હોય છે. આજે એ લોકો ખૂબ જ સરળતાથી એક્સેસ કરી શકે છે અને આ સિવાય ઘણી જ બધી વસ્તુઓ ઇલેક્ટ્રિક છે, ઓવન છે, બધું ખૂબ જ સરળતાથી એક્સેસ કરી શકે છે. અને અત્યાર સુધીનો અમારો 17 લાખનો ટર્નઓવર છે. हम दुर्गा है, हम काली है, हम देश को संवारने वाली हैं. On Women's Day, they were awarded by Collector and DBO for the success of their entrepreneurship. SHG Women won more than 40 awards. These achievements has also led to gender neutrality in the village. The attitude of the male members of the family towards women has also changed significantly. પહેલા અમારા ઘરની કોઈ સ્ત્રીઓ બહાર કામે જતી નહોતી. હવે આ ખાખરા યુનિટ સાથે જોડાણા અને અમને રોજગારી મળી રહી. એનાથી મને ખુશી છે અને એ વાતનો ગર્વ છે. However, the joy of the freedom was only short-lived. आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है. કોરોનાના કારણે મહામારીનો ડર તો છે, એના કરતાં વધારે બેકારીનો ડર લાગે. Problems can never be bigger than the solution. This is the philosophy we have always lived by. It took only 2 weeks for Pidilite to set up a sanitizer production plant. The idea came from these women. The entire training was physically and virtually conducted and supervised by experienced ICT scientists. હેન્ડ સેનિટાઈઝરનું પ્રોડક્શન કરીએ છીએ અને અલગ અલગ સંસ્થાઓ છે, મંદિરો છે, એમાં સેનિટાઈઝર પહોંચાડીએ. These women not only learned skill of the job but also quickly adapted to the technology. આ યુનિટ અમારા માટે ફક્ત આવકનું સાધન નથી, પરંતુ કોરોના સમયમાં અમે લોકોને મદદરૂપ બની શક્યા. એ અમારા માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે. They also stitched masks and catered to bulk government orders. જ્યારે કોરોના કાળનો સમય આવ્યો ત્યારે જે બહેનોને સિલાઈ કામ આવડતું હતું તે બહેનોને અમે માસ્ક બનાવવાનું કામ આપ્યું અને જે બહેનોને રોજગારીની જરૂર હતી તેમને અમને રોજગારી પણ પ્રાપ્ત થઈ અને આવક પણ પ્રાપ્ત થઈ. મહામારીથી બચવા માટે અમે માસ્ક બનાવ્યા અને બેકારીથી બચવા માટે સુગંધી મીણબત્તીનો ગૃહ ઉદ્યોગ શરૂ કર્યો. Pidilite inaugurated a warehouse on Women's Day to ensure smooth supply of produce in Gujarat and Maharashtra. The warehouse and training centers are run entirely by women. વેરહાઉસ અમને લોકોને ફૂડ્સનો માલ સામાન લાવવા, વેચાણ માટે અને અહીંયા સંગ્રહ કરવા માટે મદદરૂપ થાય છે. The aloe vera gel unit and the production of amla juice are one of the most profitable ventures of these women, who now also get orders from companies. પહેલા મોવા મોલમાં અમારા ખાખરા લેતા નહોતા, તો એ લોકોને મેં કીધું કે અમે તમારી વસ્તુ લઈએ છીએ તો તમે અમારા ખાખરા કેમ ના વેચો. તો એ લોકોએ રહેતા રહેતા વેચાણ શરૂ કર્યું છે. અત્યારે સારો એવો ઓર્ડર આવે છે મોલમાં અને મોવાના દરેક મોલમાં અમારા ખાખરા જાય છે. અત્યાર સુધી અમે 50 લાખ રૂપિયાના ખાખરા વેચ્યા છે. વર્ષોથી મહુવા લાકડાના રમકડા માટે પ્રખ્યાત હતું, પણ ધીરે ધીરે
થવા લાગ્યું. એ જ વસ્તુને મેં આજે ફરી જીવંત કરી છે. આ યુનિટ સોલારની મદદથી ચાલે છે. અહીં રોજનું 3 થી 4 કિલો યાન બને છે અને રોજનું 35 થી 40 મીટર ખાદી કાપડ બને છે. Beside these, there are different units manufacturing edible oils, essential oils, scented candles, and fertilizers. Cumulative sales of more than 3 crores achieved by SLG women. Loans of rupees 10,000 to 50,000 were given to the women from the saving of the self-help groups and from the revolving fund of NRLM and Pidilite. Till date, more than 1,000 women has taken out a micro loan and created their own income. Pidilite is continuously working to promote the economic and social growth of women in Mahua and to empower each woman out there. પહેલા અમે બહાર મજૂરી કરવા જતા ને હવે અમે યુનિટમાં કામે આવીએ છીએ. ત્યારબાદ પછી અમે અમારા બાળકોને સારી દિશામાં અમે ભણવા મોકલીએ છીએ. આર્થિક બચત અમે ભેગી કરીને મેં મારા લગ્ન કર્યા. મેં ગ્રામ સંગઠનમાંથી 1 લાખ રૂપિયાની લોન લઈને ટ્રેક્ટર લીધું છે. હું બિઝનેસ વુમન છું. હું આત્મનિર્ભર છું. મારામાં શક્તિ છે. મારામાં શક્તિ છે. મારામાં શક્તિ છે. હું શક્તિ છું. धन्यवाद। अब हम मैडम का यहाँ पर आगमन पे हम उनका सम्मान करेंगे। हम अपने बहनों से यहाँ पर कविता से, नीनल से, पारुल से रिक्वेस्ट करेंगे कि पुष्प गुलदस्ते से उनका सम्मान किया जाए और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री भरतपुरी सर प्लीज़ आप सम्मान करें। ऑनरेबल गवर्नर, थैंक यू। श्रीमती अनार बहन, थैंक यू। संस्कृति कमिंग थर्ड तीसरी पीढ़ी संस्कृति का भी अंकित, थैंक यू। संस्कृति, तुम्हारे लिए बहुत आगे का रास्ता कठिन है क्योंकि मैंने तो गुजरात में बहुत काम किया है। जब माननीय आनंदीबेन एजुकेशन मिनिस्टर थी, राजस्व मंत्री थी, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थी और फिर चीफ मिनिस्टर थी और फिर अभी गवर्नर। सो मेरे तो मैडम से आपको काफ़ी कुछ सीखना है। जो उनके हाथ में गुण है, हमको पता है, सारा आर्ट एंड क्राफ्ट उनके हाथ में है, वो सीखना है। थैंक यू। और अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे ऑनरेबल
गवर्नर मैडम से कि 2 शब्द हम माइक वहीं दे देंगे, 2 शब्द आशीर्वाद वचन जो आपके हैं वो लोगों को दें ताकि हम लोग और अच्छा काम कर सकें। पिडिलाइट तो अच्छा कर ही रही है, हम अपने जो CSR में हम और अच्छा काम कर सकें। धन्यवाद मैडम। माइक। પીડીલાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન શ્રી મધુકરભાઈ પારેખ, મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર શ્રી ભરતભાઈ પુરી, ડેપ્યુટી MD શ્રી સુધાંશુ વત્સ, डायरेक्टरश्रीओ श्री नरेंद्रभाई पारेख, अजयभाई पारेख, अपूर्व पारेख, डॉक्टर पंकज शुक्ला, वाइस प्रेसिडेंट CSR, और हमारी महिलाएं, उच्च अधिकारीगण और कर्मचारी, मुझे बहुत ही खुशी हुई आप सबके बीच में आने से। सोचा ये था कि हमारी वो बोलती रहती थी बा घर पर आओ, बा घर पर आओ, तो मैंने समय निकाला 3-4 दिन का, चलिए साथ में रहेंगे। लेकिन साथ साथ में ये पीडीलाइट का जो प्रेजेंटेशन हमारे सामने हुआ तो पुरानी बातें याद आ गई कि कैसे महिला सशक्तिकरण के लिए गुजरात में काम शुरू किया। और उसी समय में थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। 1975 SAG ग्रुप की शुरुआत हुई। इतने सालों से मैं तो एजुकेशन क्षेत्र में थी, गांव में रहने वाली थी, गांव में जाते थे, लेकिन आंगनबाड़ी जैसा कुछ गांव में है ये मुझे भी पता नहीं था उसी समय। और अचानक 1998 में मैं मंत्री बनी और मेरे टेबल पर एजुकेशन डिपार्टमेंट और महिला बाल कल्याण विभाग ये लिंक कराया मेरे पास। मुझे पता चला कि चलिए मुझे 2 डिपार्टमेंट संभालना है, एक एजुकेशन और एक महिला बाल कल्याण। तो मुझे इतनी खुशी हुई थी इसी समय कि चलिए महिला बाल कल्याण विभाग है तो इसके लिए कुछ अच्छा काम शुरू करेंगे। तो 2-3 दिन के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट को बुलाया, प्रेजेंटेशन हुआ, क्या चल रहा है, सब कुछ किया। फिर मैंने कहा कि चल कल 11 बजे महिला बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों को बुलाओ, वो भी प्रेजेंटेशन करें। तो आश्चर्य था मेरे लिए कि महिला बाल कल्याण विभाग ही नहीं था। महिला बाल कल्याण विभाग का अस्तित्व नहीं था, पेपर पर अस्तित्व था। तो मैंने सोचा कि 50% महिलाएं, 25% बच्चे, जो राज्य में 75% महिला और बच्चे हैं, उनके लिए कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं है, उनके लिए योजना की तो बात ही क्या करूं। अब लगातार मैं प्रयास करती रही कि डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, लेकिन 2001 तक नहीं बना। तो मेरा पूरा फोकस एजुकेशन पर रहा। फिर नरेंद्र भाई आए तो मैंने नरेंद्र भाई को मैं मिली और पहले तो वही बात की कि हमारे यहाँ महिला बाल कल्याण विभाग नहीं है। तो उनको इतना आश्चर्य हुआ, क्या बात बताते हो मुझे। कहा सही है सर। तुरंत ही चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया कि 1 महीने में मुझे महिला बाल कल्याण विभाग अलग करके मुझे दिखाओ, उसको बजट अलॉट कर दो, उसको ऑफिस, अधिकारी, सब कुछ मुझे 1 महीने में चाहिए। 1 महीने के बाद मुझे अधिकारी मिले, बजट मिला, तब जाकर प्रेजेंटेशन की बात हुई। तो मुझे लगा कि कुछ है ही नहीं तो प्रेजेंटेशन क्या करेंगे वे लोग। फिर हम बैठे कि SAG ग्रुप को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। फिर एक सर्वे हुआ, कहाँ कहाँ आंगनबाड़ी है, क्या काम कर रही है, कैसा काम हो रहा है और नियम क्या है उसका। ये जब मैंने देखा तो कई स्थान पर आंगनबाड़ी थी लेकिन कोई महिला नहीं थी, तो मकान नहीं था, नहीं वो नहीं था। ऐसी स्थिति में 2001 में महिला बाल कल्याण विभाग की शुरुआत हुई।
और मुझे आज खुशी इसी वजह से है कि लगातार 12 साल मैंने महिला बाल कल्याण के विभाग की मंत्री के रूप में काम किया और अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई, बच्चों के लिए भी बनाई, महिलाओं के लिए भी बनाई, प्रेग्नेंट वुमन के लिए भी बनाई, वीडो के लिए भी बनाई। जो सीखना चाहते थे तो उसके लिए ट्रेनिंग का आयोजन किया, उसके पैसा दिया, ट्रेनिंग के बाद उसको काम करने के लिए मशीन चाहिए, कोई साधन चाहिए, पैसे चाहिए, तो ये सब धीरे धीरे करके इसमें से हम शुरू किया मित्रों। तो इस स्थिति में से आज ये महिलाएं, हम महिला शक्ति है, ताकत मैंने देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई कि ये महिला शक्ति है जो हम लोगों ने आज तक इग्नोर किया। जब बेटी पढ़ती है हम इसके पीछे खर्च भी करते हैं, उसको अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, अच्छी तरह से संस्कार देते हैं, कुछ करना चाहती है वो, लेकिन जब ब्याह करके ससुराल में आती है तो ससुराल में ऐसी इज्जत नहीं है, उसका मूल्य नहीं है कि इतनी पढ़ी लिखी महिला घर में आई है, उसका मूल्य नहीं है। और वो वैसे ही जिंदगी उसको जीनी पड़ती है और उसके कल्पना भी उसने नहीं की होगी कि मैं गोल्ड मेडल मैंने प्राप्त किया है और गोल्ड मेडल के समय पे मैंने इतने सपने मेरे मन में था कि मैं ये करूंगी, लेकिन सब सपना साकार नहीं हुई। ऐसी स्थिति में महिलाएं जी रही थी मित्रों। और आज जब चाहे यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो और गुजरात, 4 स्टेट की परिस्थिति मैंने महिलाओं की देखी है और इसी वजह से मैं कहती हूँ कि जो एसएचजी ग्रुप न बने होते तो आज महिलाओं की जिंदगी में जो बदलाव आया है ना, वो नहीं आ सकता था, इतना बदलाव आया। क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ तो सबसे पहले महिलाओं को मिलती हूँ। मेरा ऑर्डर जाता है कि एसएचजी ग्रुप की महिलाएं, और सिर्फ महिलाएं नहीं, इसकी जो मेन लीडर होती है ना, किसी के पास 10 ग्रुप, किसी के पास 15 ग्रुप, ऐसे मेन लीडर महिलाओं को मैं मिलती हूँ कि बताइए आपको क्या जरूरत है, आपको क्या करना है। तो कभी कभी कोई कंप्लेन आती है कि हम लोग पैसे चाहिए लेकिन बैंक नहीं देती है, तो 1 घंटे के बाद मैसेज जाता है कि आप आ जाइए और ये सब महिलाओं को आप लोन दीजिए। तो ये काम पूरा महिलाओं के लिए हर संभव हो रहा है सभी प्रदेशों में। और महिलाएं जब बोलती है कि घर में मैं आई ब्याह करके तो घर में कुछ खाने का नहीं था, मुझे कुछ करना था लेकिन पति मना करता था कि बाहर महिलाएं काम करने के लिए, मेरी आबरू का सवाल है, ऐसे खड़े कर देते थे। तो ऐसी महिलाएं धीरे धीरे मार खा कर भी बाहर निकली और ये काम उसने शुरू किया और आज लीडर बन चुकी है महिलाएं। ये ताकत गुजरात से शुरू हुआ मित्रों। मुझे खुशी है कि गुजरात में जितनी योजनाएं बनी, ये सभी योजना धीरे धीरे करके पूरे भारत भर में गई और आज महिला बाल कल्याण विभाग मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में काफी कुछ कर रही है, काफी कुछ कर रही है। ये तो छोटा काम है लेकिन बड़ा बड़ा इंडस्ट्री चला रही है। और मुझे तो खुशी इसी वजह से भी हुई कि जब मैं अर्बन डेवलपमेंट की मंत्री बनी तब मैंने सोचा कि भाई ये सब जो इंडस्ट्रीज बन रही है, जो जीआईडी से बोलते हैं ना हम लोग, जीआईडी से महिलाओं को भी प्लॉट नहीं मिलना चाहिए भाई। महिलाएं भी इंडस्ट्रीज में हिस्सा ले रही है, अपनी इंडस्ट्री बना रही है, लेकिन उसके लिए कोई प्रावधान नहीं था। तो मैंने आनंद में, सानंद में, वहाँ कड़ी के आसपास और भरूच, सूरत, ये सब स्थानों पर 10% प्लॉट सिर्फ महिलाओं का नाम रखना है और इसमें सभी सुविधा मिलनी चाहिए सभी को और प्लॉट की कीमत भी कम होनी चाहिए। ये महिलाओं के लिए आरक्षित हम लोगों ने किया था उसी समय और आज महिलाएं वहां अपनी अपनी इंडस्ट्री चला रही है। तो खुशी की बात है कि करना है उसको, ताकत है, कौशल है, कटिबद्धता है, सब कुछ है, लेकिन जो आज़ादी मिलनी चाहिए उसको, गवर्नमेंट की सहाय मिलनी चाहिए, मार्गदर्शन मिलना चाहिए, ट्रेनिंग मिलना चाहिए, एग्जीबिशन लगाना चाहिए, प्रोडक्ट उसकी डिजाइन वगैरह होना चाहिए, ये नहीं मिलता तो महिलाएं आगे नहीं आ सकती है। और इसी वजह से मुद्रा योजना ये प्रधानमंत्री ने बनाई, क्योंकि मैं भी क्राफ्ट फ्रूट वगैरह शुरू किया तो बैंक लोन किसको देती थी? कोई महिला एप्लीकेशन लेकर बैंक के
दरवाजे पर पहुंचती थी तो पहले बोलते थे कि आपके नाम पर क्या है, आपके नाम पर क्या है, मकान है, जमीन है, वो है, वो है, तो कुछ होता ही नहीं था। हम तो जो अच्छे पैसे कमाए और दूसरा घर लेना है तो बेटे के नाम से, पिता के नाम से, वही सोच हमारी थी। लेकिन महिला के नाम से कुछ संपत्ति नहीं लेते थे लोग उससे। तो महिला सशक्त कैसे बन सकती है? उसके नाम से कोई मकान नहीं है और 50 साल के बाद जब पति का देहांत हो जाता है तो माँ की स्थिति कैसी बनती है? वो तो बच्चे उसको निकाल देते हैं। नहीं, ये स्थिति गुजरात में मैंने देखा है और बाहर दूसरे स्थान पर भी देखा है। तो पूरी जिंदगी एक परिवार के लिए जो समर्पित करने वाली माँ है, उनके लिए घर में स्थान नहीं है 50 साल 60 साल के बाद, तो स्थिति बदलनी चाहिए। और इसी वजह से हम लोगों ने 2 नई योजना बनाई जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर बनी तब, कि रेवेन्यू में मानो कि कोई महिला के नाम से कोई भाई प्लॉट खरीदना चाहता है, मकान लेना चाहता है, जमीन लेना चाहता है, तो जो रजिस्ट्रेशन फी होती है ना, वो रजिस्ट्रेशन फी हम नहीं लेंगे। रजिस्ट्रेशन फी मैंने माफ कर दिया कि भले सरकार की इनकम कम होगी लेकिन महिलाओं की इनकम बढ़ेगी। वो सशक्त होती तो गुजरात सशक्त बनेगा, और वो बंद कर दिया। और मुझे पता है कि मैं वहां थी तब तक 700 करोड़ रुपया की सब्सिडी रजिस्ट्रेशन फी सरकार ने नहीं लिया, लेकिन महिलाओं के नाम से मकान आए, गाड़ियां खरीदी गई, भाई पहुंच गए। भाई क्यों? 5,000 रुपया बच जाता है, 10,000 रुपया बच जाता है। इसी वजह से माँ के नाम से, पत्नी के नाम से, बेटी के नाम से संपत्ति खरीदी गई। एक बड़ी अच्छी बात उसी समय हुई थी मित्रों से। तो ये जो बदलाव आया है ना, ये बदलाव वैसे नहीं आया है। मैंने अभी बताया बेटी को, ये भाई बोलता था ना कि अच्छा लगता है, गर्व लगता है। ये तब हुआ कि जब ये महिला, आप तो 5,000 रुपये आज कमा कर लाते हो, पर हमारी ये महिला 10,000 रुपया कमा कर आपके घर में लाती है, तब जाकर आपको इसके लिए सम्मान की भाव पैदा हुआ है और गौरव पैदा हुआ है। पहले नहीं था मित्रों उसे, क्योंकि वो घर में ही रहती थी। बाल बच्चे को बड़े करो, बस जिंदगी पूरी करो वहां। और आज ये जो परिवर्तन आया है, ये SAG ग्रुप से आया। हम लोगों ने उसका नाम बदला, सखी मंडल रखा। सखी मंडल, सखी मंडल के नाम से आज पूरा गुजरात में हुआ। फिर सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण नाम दिया कि भाई महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास करिए, बेटियों का पढ़ाने के लिए प्रयास करिए, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ, क्योंकि बेटी चाहिए नहीं बेटा चाहिए, ये भी भाव था हमारे यहाँ मित्रों। और कई बेटियों को मारा जाता था, ऑपरेशन करवा देते थे, बेटी का जन्म ही नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में मैंने गुजरात देखा है। और 2001 या 2 में जब सेंसस हुआ और उसका जो डिक्लेरेशन हुआ कि कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं, कितनी इनकम है, क्या हुआ, ये सब आता है। और ये मैंने 2001-2 में जब पढ़ा, तब मुझे इतनी चिंता हुई कि ये तो बहुत ही खतरनाक परिस्थिति पैदा होगी, क्योंकि उसी समय जो बेटियों की संख्या थी 804 थी और बेटों की संख्या 1,000 बेटों की संख्या के सामने 804 बेटियां थी। अब है जो 804 बेटियां, मतलब 200 बेटियों की संख्या कम। तो मैं गांव-गांव जाती थी तो मैं उसको यही कहती थी कि आपके बेटे के लिए बहू मिलेगी, मुझे बताइए। 200 बेटा आपका, उसको बहू नहीं मिलेगी, वो ही रहेगा भाई। आप समझो जरा ये बातों को। तो इसमें से वो आया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और डॉक्टरों को भी, मुझे याद है कि मैं पाटन में चुनाव लड़ी थी, तो कई डॉक्टर वो यही काम करते रहते थे वहां, ऊंझा पाटन, तो सबसे आगे थे इसमें, क्योंकि पैसा मिल जाता था 2,000 रुपया 3,000 रुपया एबॉर्शन करवाने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन फर्जियात कर दिया था कि आपके पास कंप्यूटर है, वो है, फर्जियात करो। और जब पकड़े जाते थे तो कई लोगों को सजा होती थी और जेल में हम लोगों ने भेजा था। तो मुझे कई बार पाटन वाले तो खास मुझे कहते थे कि आप फिर से जीत कर नहीं आओगे,
मैंने कहा कि मुझे जीतकर आना ही नहीं है, मुझे तो सुधार करना है। बेटी को टच कैसे कर सकते हो आप लोग? तो और मैं बता दूं, मेरी सबसे बड़ी बहन आज नहीं है, उसकी सबसे छोटी बेटी रंजन, उसका बेटा का ब्याह में पाटन में हुआ। उसका ससुर डॉक्टर थे, उनको भी जेल हुई थी, उनको भी नहीं छोड़ा था कि आपने गलत काम किया है, जेल में। इतनी कठिनाई करके हम लोगों ने ये बदलाव किया है गुजरात में। तो ऐसी कई घटना है, लेकिन आज मुझे बहुत ही खुशी हुई। महिलाओं की ताकत हम पहचानिए मित्रों। और बार बार नरेंद्र भाई आम सभा में ये कहते थे, जब तक महिला आगे नहीं आएगी तब गुजरात आगे नहीं आएगा, क्योंकि 50% पुरुष की शक्ति गुजरात को आगे लाने के लिए काम करती थी। 50% शक्ति घर में बैठी थी महिलाओं के रूप में, तो उनके पास भी शक्ति है, वो भी कुछ कर सकते हैं, तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए, तब जाकर गुजरात आगे आएगा। और आज मैं देखती हूँ कि कोई भी रोड ऊपर जाओ तो महिलाएं हाथ में लेकर भागती रहती है, जाकर काम करती है, अच्छा काम करती है, और इसकी वजह से आज ग्रोथ रेट ज़्यादा बढ़ा है। चाहे एजुकेशन में, हेल्थ में हो, इंडस्ट्रीज में हो, कोई भी क्षेत्र आप देख लो जहाँ महिलाएं वहाँ आगे है। दूसरा सिंसियरिटी, मैंने एजुकेशन में देखा है, जब महिलाएं आगे है, बैठी है, चाहे वीसी के रूप में बैठी हो या प्रिंसिपल के रूप में बैठी हो, और पुरुष एक जगह बैठा हो, और दोनों की कंपैरिजन करो तो महिलाएं इससे आगे है। आप बैठे हो इसी वजह से माफी मांगती हूँ आपकी। लेकिन मैंने अनुभव किया है, आज बैंक सिस्टम जो चल रही है और घर घर महिलाएं जा रही है, विड्रॉ करती है और एक बुजुर्ग को घर पर पैसा पहुंचाती है। यूपी में पूरा ये काम महिला कर रही है, आप सोचिए। और दूसरी ओर पुरुष क्या काम कर रहे हैं? यदि आप 1 लाख रुपया लेकर जाओ ने तो बीच में से वो खींच कर ले जाता है, और पुलिस उसको बचाने के लिए काम करते हैं। और हमारी महिलाएं 5,000, 10,000, 25,000 रुपया बैंक में से लेती है और उनके घर तक पहुंचाती देती है वृद्धजनों के लिए गांव में। ये डिफरेंट मैंने देखा है मित्रों। तो आज મને બહુ જ ખુશી થઈ। બધા આ કામની અંદર લાગ્યા છો અને એક પણ ક્ષેત્ર આપણે છોડી નથી। તમે થેન્ક યુ। એક પણ ક્ષેત્ર છોડી નથી, બધાની અંદર બહેનોને તમે લાભ કરી છે, અને એટલે જ આપ સક્સેસ થયા છો। પુરુષો કદાચ હોતા આટલા સક્સેસ ના થયા હોત। હા, 100% તમને કહું। મહિલાએ ઘરનું કામ કરીને પણ, રસોઈ કરીને, બાળકોને તૈયાર કરીને, જમાડી કરીને એ નીકળે છે, અને સાંજે 5 વાગે જઈને એ જ બહેન ઘરની અંદર કામ કરે છે। એણે પૈસા વધ્યા, પરંતુ એણે કોઈ બીજી કામવાળી રાખી કે હું લેટ આવું તો તું રસોઈ કરીને તૈયાર રાખજે મારી પાસે? નહીં રાખી, કારણ કે એને ખબર છે કે મારા છોકરાઓને, મારા પતિને મારે ગરમ ગરમ રસોઈ કરીને જમાડવા છે, કારણ કે મારું એક કર્તવ્ય છે। એટલે પોતાનું કર્તવ્ય નથી ભૂલી, અને સાથે સાથે ઘરને હું કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકું અને છોકરાઓને આગળ કેવી રીતે હું વધારી શકું, એ જ એનું લક્ષ્ય છે, અને એ લક્ષ્ય પૂરું કરવા માટે પ્રયાસ કરે છે। ધન્યવાદ। धन्यवाद मैडम आपके। जैसा कि हमने भी गुजरात में काफ़ी काम किया है आपके समय से लेकर और अभी तक, तो गुजरात में लोग ये कहते हैं आज भी आपको कि आयरन लेडी ऑफ गुजरात। तो थोड़ा सा मैडम ने आज बताया। और यहाँ जो मूवी में मैडम ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो टचिंग पॉइंट था, वो बराबर से आपने इसको हाईलाइट किया मैडम, और वो वास्तविक घटना है। लगभग 13-14 की बात है जब हमने कौशल वर्धन केंद्र वहाँ पर कलसार गांव में चालू किया था। जो कलसार गांव जो पारेख फैमिली का नेटिव विलेज है, तो वहाँ पर ये लेडी उस समय, ये यहाँ पर तो दूसरी लेडी, लेकिन उस समय जो हमारे पास लेडी आई उसने बोला कि आप रात में करिए और कौशल वर्धन केंद्र का जो टीचिंग का, तो हम उसमें आएंगे। तो थोड़ा मैं
असहज हुआ कि भाई रात में तो जनरली लेडीज प्रिफर नहीं करती हैं और ये कैसे कर रही है। फिर मैंने कहा उससे मिलेंगे, उसके घर में गया, मिला उससे, तो उसने बोला कि हमारे घर के जो बड़े हैं, हमारे जो जेठ और ससुर हैं, वो सो जाते हैं शाम को 6-7 बजे के बाद, फिर मैं आऊँगी रात में 9, 10, 11 बजे तक करेंगे। हाँ, छुप छुप करके हम आएंगे। फिर उन्होंने एक छोटा सा बैच चालू किया था, उसमें 10-12 लेडीज आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो लोग मेन लाइन में आ गए। और उसी महिला के कुछ सालों बाद फिर उसने कई सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम किया। उसी महिला के ससुर उसको बाइक से छोड़ने आते हैं। हाँ, तो उसका ही इसीलिए उसमें हमने बोला था, जब हम बात कर रहे थे ONM से, तो हमने कहा ये बड़ा टचिंग पॉइंट है, इसको अपने उसमें दीजिएगा, तो उन्होंने लिया। तो जो एक वास्तविक घटना थी और उसको उन्होंने यहाँ पर उसका चित्रांकन किया। धन्यवाद मैडम। सो विल रिक्वेस्ट आवर चेयरमैन मिस्टर मधुकर भाई पारेख टू से फ्यू वर्ड्स एंड देन स्मॉल ceremony and then we'll discuss. Yeah. The Honorable Anandiben, I think we are thankful for your visit along with 2 more generations here. So it's so wonderful to see all of you together here. आनंदीबेन ने जो बताया कि उनकी जो करियर में ये फोकस रहा है कि महिलाओं और चिल्ड्रन, बच्चे और महिला के लिए बहुत ही पहले से उन्होंने काम किया, उनके फैमिली ने भी काफ़ी काम किया है। तो ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन भी है। और मैडम आए थे जब भी 2015-16 में, तो दैट उससे भी काफ़ी इंस्पिरेशन सब विमेन को भी मिला था जी, जब ये चीफ मिनिस्टर थी या जी मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर मैडम आई थी। तो ये उन्होंने ऐसे भी बताया कि गुजरात में समाज और गवर्नमेंट जो साथ मिलके काम करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड से, उससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। एंड दैट इज समथिंग विच इज नॉट फाउंड एल्सवेयर। कि क्या तो गवर्नमेंट नेगेटिव रहती है या तो समाज आगे नहीं बढ़ता है। दोनों साथ मिलके काम करने का जो गुजरात में जो दौर है, वो मुझे लगता है कि वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट उससे हो रहा है। एक और चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि आनंदीबेन ने बताया कि आंगनवाड़ी के बारे में, तो हम लोग आंगनवाड़ी का पूरा इनिशिएटिव भी बढ़ा रहे हैं पूरे भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, बेस्ड ऑन गिजुबाई मेथोडोलॉजी। हाँ, बदेगा। वो वी आर एक्चुअली, he was a pioneer in pre primary education of children of maybe let's say 3 to 5 year, 6 year, before they enter the actual formal education system. और वो उसका तरीका ऐसा था कि the children were enthusiastic and they were participating in the whole process, and they were not bogged down by memorizing anything or doing things which are not part of their daily life. तो पूरा अपना जो सराउंडिंग रहता है, उसकी खुद की दुनिया का जो एलिमेंट्स रहता है, वो सब लेके ही उसका पूरा वो जो तरीका था। Now that is a wonderful way of bringing the child in the world, which is more complicated as they grow. But that kind of I would say, training was producing, encouraging creativity, enthusiasm and everything. So we have taken a step to expand this Gijubai system to large number of Anganwadis, and first we'll cover Bhavnagar city and Mahua Taluka, which we are already doing, and then we are covering rest of Bhavnagar district, and we have also approached Gujarat government to kind of look at this to spread across Gujarat, all the Anganwadis, because Anganwadis are really a very tremendous resource available, but we have to make the best use of it. So this is another initiative I think we are taking. I just remembered because Anandiben mentioned about Anganwadi at her initial period. So again, we are grateful for your visit, Anandiben, and all the work which you have done and we are doing. We continue to be in touch with Anarben also. She is doing wonderful work on developing, reviving crafts and developing crafts and everything. Now we have to look forward to one of the younger generation to continue in her footsteps.
So all the best to you. Thank you very much. थैंक यू। एक और इंसिडेंस में बताऊं कि जब वाइब्रेंट गुजरात होता था और मैडम उसकी मुखिया थी और पूरे विश्व के बड़े बड़े जो थे राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, बिग 5 के भी सब आते थे और मैडम बड़े केयरफुली सबका स्वागत करती थी और लगभग 150-200 से ज़्यादा कंट्री के लोग आते थे और उसमें हम लोग भी थे। तो एक बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन था मैडम का कि जब हम सबको, क्योंकि इतने गेस्ट आते थे, एक बार एयरपोर्ट पे फ्लावर्स देना पड़ता था और एक बार जब सभा में आते थे वहां फ्लावर देना पड़ता था, तो मैडम का इंस्ट्रक्शन था कि कोई भी फ्लावर नहीं दिया जाएगा किसी को। इफ यू रिकॉल मैडम, आपने पुष्प गुच्छ की जगह फ्रूट्स की टोकरी देना चालू किया था सबको, और वहीं पे जो भी फंक्शन होते थे और वहीं पे एक आंगनबाड़ी के ग्रुप के लोग आते थे और वो पूरा फ्रूट्स की टोकरी उनको दे दी जाती थी। तो यू कैन इमेजिन पूरा 5 दिन चलता था, इतना बड़े स्केल का अच्छा वो चालू किया आपने तो जस्ट टू टेल यू मैडम कि जब कल मूर्ति नहीं लाना जी, कोई फ्रेम नहीं लाना जी, कुछ नहीं लाना जी, 2 चीज फ्रूट्स यस, या यस, छोटे छोटे बच्चों के लिए स्टोरी बुक, Yes. बुक। यस, यस। सो हम आपके आने का स्वागत की तैयारी कर रहे थे तो कुछ तो हम मान के चले गए तो होता ही है, लेकिन फिर हमको याद आया, हमने कहा वो तो फ्रूट्स की टोकरी तो है ही नहीं। हमने कहा वो हो सकता है, वो भी हो सकता है यहाँ पर फ्रूट्स की टोकरी, लेकिन हमने अपने करीब को बोला कि जरा पता करो अंधेरी ईस्ट वेस्ट मिला के कितनी आंगनबाड़ी, तो हम लोग उनको यहाँ बुला लेंगे, वी विल कॉल एंड देन दिस। तो ऑन इंटरनेट तो बहुत सारे थे, जब वहाँ भेजा तो ऐसा कुछ था ही नहीं। इवन अंधेरी ईस्ट में जो आंगनबाड़ी थी, जब वहाँ भेजा और फोटो था नेट पे, वो फोटो दिखा ईस्ट और वह सबका दिख रहा था, लेकिन जब वहाँ गए हमारे कलीग्स अब, तो पता चला ऐसा कुछ नहीं था। अभी तो कल की बात है, तो लेकिन एक आंगनबाड़ी पे प्रसंग आया तो आपसे बस थोड़ा शेयर किया, तो फिर हम फेल हो गए, फिर फ्रूट्स की नहीं दे पाए। सो अगेन नाउ द लास्ट आइटम, नाउ विल रिक्वेस्ट आवर डेप्यूटी एमडी Mr. Sudhanshu Vats ji to share a token of love and from our side, and this the Pidilite logo which I think you can present by opening show to madam, and then we'll request our एंड ऑल्सो हमारे यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट का भी काम होता है, तो एक स्मॉल द टोकन आवर सुपर टीचर, वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सुपर टीचर। तो सुपर टीचर ने आर्ट एंड क्राफ्ट हैंडमेड यूजिंग द फेविक्रिल रेंज ऑफ द प्रोडक्ट, एंड उन्होंने एक साड़ी पे पेंट किया है, तो वो भी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर yeah. And now Mr. Vats will hand over this token of love to madam. And similar sari is for you also, yes, is it? And hold it. Thank you. Yeah, as for Sanskriti also. Thank you so much. And don't worry, Ankit, this is time for you. This time for you is hand painted, not sari. Thank you. Hold it. Okay. अब भी कुछ देना चाहते हैं। अच्छा, thank you, madam. So we'll request our chairman to receive this some memento from, I think, definitely from Uttar Pradesh. Sir, look here. अच्छा। Sir, look here. Hold it. ये भी हमारी महिलाएं बताती है। Oh, beautiful, yes. मुरादाबाद? कन्नौज। अत्तर बहुत प्रख्यात है। अत्तर बहुत प्रख्यात है। जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। राजभवन में कोई भी आता है तो महिलाओं के द्वारा बना हुआ चीजें जी, हम कोशिश करेंगे हमारे महिलाओं का बना हुआ चीजें और राजभवन में आ जाए। So पारुल,
ये है, ये हम आई थिंक लोग कार में रखवा देंगे। महिलाओं से बनाए हुए चीजें जो भी आपने देखे वो यहाँ पे रखे हैं। एलेविना थोड़ा सा पीछे, सचिन, हाँ ये पीछे रखे वहाँ पे गाड़ी में रखवा देंगे। हमारा 2 रेंज ऑफ द प्रोडक्ट है। एक तो पिडिलाइट रेंज ऑफ द प्रोडक्ट जो कि वो थैले में है, और जो आपको देख के लग जाएगा जो महिलाओं ने एक अलग से बनाया है वो टोकरी में, और उसको वो जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने जो प्रोडक्ट बनाया है वो है, तो आपके गाड़ी में। थैंक यू मैडम। एंड ये सब मुझे कहने में बहुत ही खुशी होती है कि मैं डिस्ट्रिक्ट में जाती हूँ तो खास करके जो लोग मुझे देते हैं ये सब राजभवन में आता है। इसके बाद उसका वितरण हम कर देते हैं। जो राजभवन में लोग रहते हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं, या तो कोई अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, तो वहाँ पहुँचाते हैं। ये मैडम खाखरा है, बाजरे का खाखरा है। आई थिंक यू विल यूज इट। आज सुबह मम्मी बोल रहे थे कि मेरा तो ऐसा है कि अक्षय पात्र जैसा हो गया है। तो मैं जैसे ही नीचे जाती हूँ राजभवन, इतनी सारी गिफ्ट आती है, ऊपर आती हूँ पूरा आधा टाइम उसको देने में लगता है। वो तो आता ही रहता है, मतलब ज्यादा रहता है। और ये जिम्मेवारी मैंने अशोक को दिया है। जी अशोक जी। कोई बचना नहीं चाहिए। और इसमें राजभवन के जो बच्चे हैं जो खेलते हैं बहुत अच्छा, लेकिन टेटमेट है, पतले पतले, या तो पोषण नहीं मिलता है। जी जी जी। तो सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं। जी जी। अब ये सोल्यूशन ढूंढ रहा है ना अभी। न्यूट्रिशन के लिए पकड़ेंगे। धन्यवाद मैडम फॉर कमिंग। हमारा सामने रिसोर्स सेंटर है, अगर आपके पास टाइम है तो हम लोग जा सकते हैं 5 मिनट, और जैसा जाए। थैंक यू। बारू तुम आगे चलो। Here also, this is for like craft for older people, like 14 plus kind. હમણાં નવું ચાલુ કર્યું છે મમ્મી, ઓલ્ડર લોકો માટે ક્રાફ્ટ. હા, એનું કામ, પછી કલર, આ બધું જેમ કે આપણે પહેલાં જૂના ટાઈપના વિન્ડોઝ આવતા હતા એ ટાઈપનો. ટ્રેન્ડ છે. હા. This is made with fabric glue. If you take a lot of fashion shows, they use these products. Yeah. These are like sturdy. Stays. Yeah, it stays. Fabric glue. Fabric glue. This is made with fabric. और जरदोजी finishing कितना अच्छा है. हमने मुझे लगे कि ये प्रोडक्ट है, हर इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, तो मैंने देखा मुझे ITI में काम करते हैं, तो हर इलेक्ट्रीशियन अपने जेब में रखता है। हाँ, उसको बस तार पे लगाता है। हाँ, every year 200 scientists आपके लिए गाइड मुझे ऐसा लग रहा है नेचुरलाइज बिकॉज हम लोग की मेडिटेशन मेसन का कोर्स करते हैं आपके ये सब वाटर प्रूफ मेसन के आते हैं उनको पता ही नहीं हम ये नया कोर्स करवाए हैं हमारे पास और वो बोलते एक साथ 5000 मीटर बन के फैक्ट्री से फिर उनको एप्लीकेशन करते हैं और फिर ये फीचर्स आते हैं जिसको मोस्टली एक्चुअली प्रोडक्ट
जो बनता है तो यहाँ पर उसको अप्लीकेशन करके आप लोग बहुत क्रिएटिव जगह पे बैठे हो है ना, उससे ज्यादा अच्छा आइडिया भी आता है। आपको पता है कौन सा तुम्हारा बेटा मिल ये बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत अच्छा कर रहे हैं वही है एक्चुअली लोगों को डेवलप किया जा रहा है। लोग डिफरेंट स्कूल से आए हैं तो यहाँ इनको ट्रेन करके मतलब कॉन्सेप्ट जो है ये लोग करते हैं। हाँ अच्छा I have children autograph. अच्छा जी ये क्या This is made with हाँ? MCL अपना yes for CP you can call it MCL. हाँ यार बेसिक बेस तो ही है ना। પછી એક્ઝિબિશન ને બધું કરો છો? हाँ इसका एग्जीबिशन या पाल मैम बताओ बुक्स आप બધું બુક્સમાં પ્લેસ કરીએ છીએ, વેબસાઇટ પર જાય અને બુક્સમાં જાય which books goes to school and colleges ત્યાં લોકો રેફર કરીને એમાંથી they understand કે what they can use from this and they can make some articles. પછી એ લોકો બાળકોને શીખવાડે प्लस आजकल क्या हो रहा है ज़्यादातर वेब से हो रहा है, तो अब हमारे जो ये हॉबीस्ट हैं हमारे लाख से लोग ऑन आवर साइट ऑन रेगुलर बेसिस हमसे लगे रहते हैं, फीडबैक देते हैं, हम उनको फिर नए डिज़ाइन देते हैं, तो रेगुलर और बढ़ता जा रहा है। और अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उससे बहुत अच्छी चीज़ है जो उन्होंने कहा कि 10 दिन स्कूल बैग फ्री होने चाहिए, उनको कुछ हाथ से करना चाहिए। और गुजरात गवर्नमेंट उसमें पहल ले रही है। अब तो हम लोग गुजरात गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी। These are just few of the books. अभी जिस तरह करना चाहिए इसी तरह नहीं शुरू हुआ है, जो अपेक्षा रखी गई है प्रधानमंत्री से अभी काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर। प्रॉब्लम ये है कि जो टीचर स्कूलों में है तो जो सिखाना है इसमें भी पूरा टीचर नहीं, फिर क्राफ्ट का टीचर कहाँ से है? तो जरूरी ये बनेगा कि भाई वहाँ जो टीचर उसको पहले ट्रेन करो, छोटा मोटा वो तो करेगी सीखेगी। दूसरा क्या है कि अभी जिसकी उम्र 50 साल हो गई है तो उसको 5-6 साल ही बाकी है, तो वो बोलती है मैं क्यों कष्ट उठाऊँ भाई ये सब सीखने के लिए, नया सीखने मुझे तो 4-5 साल ही रहना है तो क्यों सीखूँ मैं? ये प्रॉब्लम हमारी है। कंप्यूटर हम लोगों ने उसी समय दिया था, तो कंप्यूटर टीचर तो नहीं दे सकते थे, लेकिन वही परेशानी हमारे सामने आ गई। कभी मैं कहाँ ये सीखूँ, मुझे तो एहसास नहीं आता है। तो नए जो टीचर आए विद्या साहेब, इन नए टीचरों को ये लोग सिखाते, तो ये प्रॉब्लम तो पूरे देश भर में है, ऐसा नहीं है। तो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि पेरेंट्स भी 7वीं 8वीं कक्षा के बाद वो सिर्फ नंबर के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि इतनी कंपटीशन है। हाँ कि भाई बाकी किसी चीज़ पे डिस्ट्रैक्ट मत हो, आप सिर्फ ये ट्यूशन क्लास में लग जाओ, इसमें तो आप ऑलराउंड बच्चे नहीं आ रहे हैं, सब बिल्कुल एक दिशा में जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा चेंज तो हुआ है। मैंने देखा है कि पहले कृषि में कोई नहीं जाता, मतलब बेटियां नहीं जाती, आज 50% बेटियां कृषि में यहाँ ये बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव। इसी तरह पशुपालन यूनिवर्सिटी है, इसमें 50% ज़्यादा बनता है। बट वो रीजन ही कि मोदी साहब ने गोबर को गोल्ड बना दिया है अभी। लोग फिल्म में भी आपने देखा चेंज हुआ है। अभी जो जनरेशन है वो सोचती है कि माँ बाप बोलेंगे वो नहीं करता है, वो करते हैं वो नहीं करता है, तो अलग करता है। नहीं, और चेंज ये भी है, जैसे हम नए ट्रेनी लेते हैं हर साल, अब 50% अब हम बचपन और हर फील्ड से आ रही है, इंजीनियरिंग से बहुत आ रही है, हर फील्ड से आ रही है। फिल्म में भी मैम आपने देखा वो ट्रैक्टर वाली जो थी, वो दैट वाज द सेकंड बिग मोमेंट मैंने देखा हो, शुक्ला जी ने जो फिल्म बनाई थी उसमें दैट वाज अ रियली गुड वन। उसको उस लेडी को देख करके बहुत लेडी पे इंस्पायर हो गई, बोलती हमको भी ऐसे ट्रैक्टर चलाना है।
तो लेडीज नंबर होने वाली है। चेंज करते आए ना तो मीडिया पकड़ ली। बिल्कुल ये वो कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल और ये नया जनरेशन माँ बाप को नहीं मानते। मुझे चाहिए मेरी रुचि में आपकी रुचि में। तो देखिए हर जनरेशन ये सोचता है कि ये जनरेशन नहीं मानता है। She said you can come and she wants to come here.